अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीरानस फार्मूला, जो कि आपके U3 एग्जामिनेशन का फर्स्ट चैप्टर है। हीरान एक मैथमेटिशियन था जो इजिप्ट का था। उसने फार्मूला दी है जिससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। बट दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली ऑन दैट ट्रायंगल्स हुज 3 साइड्स आर गिवन। हम उसी ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं बाय हीरानस फार्मूला, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड हमें मालूम हो। ठीक है, हीरानस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एज पर हीरानस फार्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल equals to, by Heron's formula, root of s into s minus a into s minus b into s minus c। अब सुनो, ये s क्या है और a b c क्या है? वायर a b and c are the three sides of a triangle, and ये जो S है, that is S is semi perimeter. S stands for semi perimeter of a triangle. Semi perimeter means, semi means half a perimeter, and you know that perimeter is the sum of the all boundaries of a closed figure. For example, in a triangle there are 3 sides, and perimeter means sum of its all 3 sides. If this is triangle PQR, perimeter means sum of side PQ plus sum of side QR plus sum of side RP. ठीक है, and let this side be equals to 4, this equal to 5, and this equal to 6. So the perimeter of this triangle equals to 6 plus 4 plus 5, that is equal to 15. ठीक है, semi perimeter means half a perimeter, that is equal to, क्योंकि जो ये साइड है ए बी एंड सी आर 3 साइड ऑफ a triangle, so semi perimeter equals to a plus b plus c divided by 2. Semi perimeter equals to a plus b plus c divided by 2, that is equal to semi perimeter of a triangle. ठीक है, यही हीरानस फार्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर गिवन, दैट इज root of s into s minus a into s minus b into s minus c, where s stands for semi perimeter and a b c are the 3 sides of a triangle. ठीक है, अब इसके बाद आपको सीधे अब एक्सरसाइज पे जाना है। एक्सरसाइज 11.1, उसमें आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप exercise 11.1 is exercise 11.1, question number first. Question is, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? Question is, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे ये लिखा है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। ये जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इट इज शेप इज इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस दैट ट्रायंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ये एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप मींस इट इज ऑल 3 sides are equal. And these sides are, it is given in question, are A and A. इस पे क्या लिखा है? स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। आपको इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है जिसकी शेप इक्विलेटरल ट्रायंगुलर है और साइड्स किसके बराबर है? ए के बराबर है। ठीक है,
And another part is if its perimeter is 180 cm, अगर इसका पेरीमीटर 180 cm के बराबर है, इस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 cm के बराबर है, आपको बताना है इसका एरिया किसके बराबर होगा when its perimeter is 180 cm. ठीक है, what will be the its area? हम ऐसे लिखेंगे let PQR be the, इसका मैं नाम रखूंगा यहाँ PQR. Let PQR be the equilateral triangular shaped traffic signal board. इसको मैंने नाम रखा है PQR. Whose sides are, or we can say with side A. इस इक्विलेटरल ट्रायंगुलर जो सिग्नल बोर्ड है उसके साइड के बराबर है A के बराबर है. ठीक है, तो अब हमें इसका एरिया निकालना है. उसके लिए हमें पहले S मालूम होना चाहिए, दैट इज सेमी पेरीमीटर. So we write here, therefore semi perimeter, that is S equals to A plus B plus C divided by 2. Where A B C क्या है, A B C 3 साइड्स है इसके, लेकिन ये जो A B इसके 3 साइड्स है, that is all equal. So we write here A plus A divided by 2, because it is 3 sides, all sides are equal, which is equal to 3A divided by 2. ठीक है, ये इसका सेमी पेरीमीटर है. अब हमें इसका एरिया निकालना है. Now area of a board equals to what? Root of S into S minus A into S minus B into S minus C. S minus B into S minus C. That is equal to root of S equals to what? 3A divided by 2 इसके बराबर है. And it is also equal to, S equals to 3A divided by 2 minus A के बदले क्या है, A. ठीक है, and this is equal to 3A divided by 2, और B के बदले भी A ही है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, and third is 3A divided by 2 minus A. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे रूट ऑफ किसके बराबर, रूट ऑफ 3A डिवाइड बाई 2 n2. इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका डिनोमिनेटर A का डिनोमिनेटर 1 है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3A into 1 that is equal to 3A minus 2 into A that is equal to 2A divided by 2 ones are 2. ऐसे यहाँ भी आएगा 3A minus 2A divided by 2, यहाँ भी आएगा 3A minus 2A divided by 2, and this is root. ठीक है, उसके बाद आएगा रूट ऑफ 3A divided by 2 n2. This is 3A minus 2A that is equal to A, 1A. A divided by 2 n2. This is also A divided by 2, and this third one is also A divided by 2. ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीपल करेंगे रूट के अंदर, तो
तो ये किसके बराबर निकलेगा? दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3, हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय दिस इज 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू a इंटू a, 4 टाइम्स a है, a इंटू a इंटू a इंटू a, ये किसके बराबर आएगा? मैन बेस द सेम पावर शुड बी एडेड, ये आएगा a रेज्ड पावर 4, क्योंकि ये 4 टाइम्स है, ठीक है। नाउ दिस इक्वल टू, ये किसके बराबर है? हम ये रूट 3 को भी देंगे, 16 को भी, और a रेज्ड पावर 4 को भी, ठीक है, अलग अलग हम देंगे। दैट इज इक्वल टू, हम 3 को रूट देंगे और 16 को रूट देंगे और रूट a रेज्ड पावर 4 को भी देंगे, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू रूट 3 इक्वल्स टू रूट 3, एंड दिस इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस एज a स्क्वायर होल स्क्वायर, a raised power 4 equals to a square whole square. When we multiply 2 into 2 we will get 4, ठीक है, divided by square root of 16 equals to 4, because 4 4s are 16, square and root will cancel, we will get root 3 divided by 4 into a square, ये इसका एरिया है इस ट्रायंगल का, इस सिंगल बोर्ड का, जिसके साइड a के बराबर है, ठीक है।